you are coming to UPS or if you're planning to go with the logistic, so this is the roadmap you have to follow. If you are coming to UPS or if you're planning to go with the logistic, so this is the roadmap you have to follow. So, roadmap to come to UPS might not be very difficult and hard. You can come here easily by CAT, UPS Net, UPS Met, UPS entrance exam. So hello guys, welcome to our very new podcast, and today we have with us Anshika. So she recently got placed in Britannia. Hello Anshika, how are you? Hello Abhishek, I'm good. How are you? I'm good too. So Anshika, this is our college podcast, all right, and in which we used to invite our alumni or our college students who got placed in MNCs or different companies, and we'll discuss their whole past decades, their experience in the industry and everything. So can you just give me a like brief about your whole past decades? Like we're gonna start from your like schooling. Like from your school, after that you have completed a BBA from Pune itself. I got through your profile, and you have completed your like you are in MBA, right? So just give me a brief about your schooling, like from 10th, 12th. How was your schooling? So, first of all, Abhishek, thank you so much for inviting me, You're welcome. and I'm very glad to be here today. And talking about myself, I am from Ambikapur, Chhattisgarh, Perfect. and I have done my schooling from there itself till 12th. And post that, I have done my graduation from MIT WPU Pune Mhm. in BBA, which was in Event Management and Marketing. Mhm. After that, I have pursued a diploma also, PGDM in the same field. And the event And- marketing, right? Yes, event marketing. Perfect. And while doing that PGDM and graduation, I have worked with a few event management companies for different events, concerts like Shreya Ghoshaal's concert, then sports events and etc. Corporate events as well. So after that, as you can see, I am here today in MBA, doing MBA in UPS from in logistics and supply chain management, and that is it. I have also recently done my internship in DS Group, which Okay. was in the same department, supply chain management, and that is it about me. All right. So now, Anshika, I'm gonna start with your schooling, right? So as you have said, ki you have completed your 10th and 12th from your hometown, right? From Ambikapuri, I think. So like, can you just give me a brief about your whole profile? Like, you were a commerce student or the science student or what? And why commerce stream? Like, why BBA just after 12? So can you just give me a brief of that? Yes, so I am from a commerce background. I am Oh, from commerce okay. stream, Mhm. and that also commerce without maths, because I am not good at with the numbers. No, So that is it. And after that, choosing BBA, because I always had this in my mind that I want to do MBA, and BBA is the best degree. Like business and how management works, this has always inspired me. Yeah, so in India, it's a trend. Like if you're not good with the numbers or something like this, then you can choose like you can go with the commerce or arts field, right? So why Pune? Like you have completed your bachelor's from Pune itself. So it's like कि छत्तीसगढ़ से पुणे जाते हैं, like we all know about the Pune city, right? The life of the Pune city is way too good. So is there any specific reason, or you are too interested in the particular college itself? And sorry to interrupt you. And like, why event marketing? Like, you have more specialization in people. Like, you can go with the marketing, the finance, or the HR thing. So why event marketing? So, at first, while I was so every student I think is confused Right, after just- what to do after 12th. Just after 12th, हर किसी हाँ. को ये होता है कि 12th के बाद अब क्या करें, वो Perfect. एक क्वेश्चन आता ही है. हाँ. और जब वो क्वेश्चन चल रहा था, मेरा वो फेज चल रहा था, तो I was also thinking the same thing, that what next. And I just gave some exams, entrance exams like others, and then I got two colleges. One was in Mumbai and one was in Pune. Perfect. So Pune is a place where you get the exposure, but still you have that homely feeling, or at least it's not Mumbai, because Right. Mumbai is just known for, oh, so बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है, Crowded is the movie. how the will you bo- survive XYZ. Right. So Pune was my parents' decision as well as mine, because I wanted to get exposure, and then even management. So that was something very new. It still is.
Exactly, like in India only, like if you are from tier 3, tier 4 or tier 5 cities ना, तो the parent choices directly कि यार if you are from commerce just go with the BBA, allowing the BCom thing, and if you are from maths so just go with the BTech, so something like this. So like event marketing is also new for your parents also, like they must be confused कि यार ये event marketing क्यों कर रही है, like BBA में और भी specialization है, marketing में job कर सकती है, accounts में जा सकती है, so like उनको भी convince करना पड़ा था, it's just that कि आपकी ही मर्जी थी खुद से कि हाँ यार इवेंट मार्केटिंग में जाना है और यही परस्यू करना है फिर। मर्जी तो मेरी खुद की थी, हाँ टू भाई। बी वेरी फ्रैंक। एंड रिसेंटली हुआ ये था कि इवेंट मैनेजमेंट बहुत सडनली आया था मार्केट में। लाइक इट्स लाइक ट्रेंड में था उस टाइम पे, लाइक द Exactly. बूम ऑफ द सोशल Now मीडिया। you can see a lot of people are conducting events, ट्रू दैट। families are conducting events, but at that time it was not that common. So it उस was टाइम पे very, न्यू न्यू था हाँ, कुछ कि हाँ काफी अब ये यूनिक करना था। है, हाँ लेट्स गो फॉर तो दिस। जब मैंने घर पे बोला कि आई वांट टू डू बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आया था कि व्हाई नॉट मार्केटिंग, व्हाई नॉट फाइनेंस, व्हाई नॉट एचआर, क्योंकि सब बीबीए उसी ट्रू में ट्रू करते हैं, ट्रू देन दे ट्रू। कंटिन्यू देयर एमबीए एमबीए पोस्ट दैट। हाँ। So, but yes, I was interested, and thankfully, my parents are very much understanding. So they had this thing. Okay, if you want to go with this, then pursue it. ऑलराइट, सो ये आपका जो बीबीए था वो आपने लाइक कौन से ईयर में कंप्लीट कर लिया था, लाइक एट दैट लाइक बिफोर लाइक प्री कोविड और लाइक पोस्ट कोविड? I would say during COVID. ड्यूरिंग So I कोविड। was the batch of 2021. I completed my graduation in 2021. Yes. 2021. All right. So, what after that? Like you went for the, I mean, the work ex or the internship or what? Like just after the completion of your graduation, So after that, I went for the PGDM. PGDM course. Yeah, so as we know, 2021 and 2020 were the COVID years. Yeah, right, right. So after that, I was initially thinking of doing MBA directly after my BBA. Mhm. But due to COVID, everything was online. और ऑनलाइन करने का कोई सेंस नहीं है। Like I'm also from the COVID batch, so it's just that ki online classes, online exam. Like my graduation year was like 2019 to 2022, और मैंने पूरा ही कोविड में लाइक अपना ग्रेजुएशन किया है, सो आई कैन फील द पेन, लाइक कॉलेज जाना, लाइक वो एक एटमोसफियर ही अलग होता है, लाइक ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस आर होली डिफरेंट। I remember my 1 year was completely online during my BBA. So that was a time जब हम बस क्लासेस चल रही होती थी और हमारा अलग कुछ काम चल रहा होता था। एग्जैक्टली, फोन से लैपटॉप्स अपने अलग अलग रखे हुए चल हैं, रहे we are होते थे और taking हम all- अपना अलग चल रहे होते थे। Right. तो वो आप कॉलेज लाइफ नहीं एंजॉय कर पाते उस ड्यूरेशन में, ना आपका एक्सपोजर होता है, ना आपकी नेटवर्किंग होती है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइज जो अभी भी लाइक एमबीए के होंगे, लाइक अपने बैच के होंगे या करेंटली वो वाचिंग दिस वीडियो, मोस्ट ऑफ देम कि वो कोविड बैच के ही होंगे, तो वो ये चीज़ रिलेट कर पाएंगे अपने में कि हाँ यार आई हैव ऑल्सो given online exam and everything, right? So you just after the completion of your bachelor's you went for the PGDM course, Yes. right, in the same field, in the event marketing itself. yes, event management and marketing. From which college, like can you just let me know the institution name or something? Yes, like this? so it was ISM Mumbai, Indian School of Media, Perfect. which is affiliated with the St. Xavier's. So there that they were offering a course of PGDM, postgraduate diploma in event management and marketing. So it was around roughly almost 1 year course. So yeah. Perfect. So you have completed your this PGDM course in 2023 itself, right? Yes, 2023. Perfect. And I went through your whole LinkedIn profiles and I have seen like few internship there. Like you have completed your internship in Maruti Suzuki, and in MBA like you were working with the DES group, right, as an intern. So can you just give me the brief idea of internships and let us know like let's guide students की internship कितनी ज़रूरी है, प्रोजेक्ट्स कितने ज़रूरी हैं, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द MBA अभी उससे, क्योंकि अभी हम MBA पे नहीं आए हैं, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट योर BBA एंड PGDM कोर्स, राइट? सो वहाँ पे भी यू आर डूइंग इंटर्नशिप, सो कैन यू जस्ट गिव अस द आइडिया कि इंटर्नशिप कितना ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, लाइक अभी यू गॉट प्लेस्ड इन ब्रिटानिया, राइट? एंड अभी हमारी बैकग्राउंड में भी डिस्कशन हो रहा था कि योर होल ब्रिटानिया इंटरव्यू वाज अबाउट DS ग्रुप, की वहाँ पे आपने क्या काम किया, कैसे काम किया, सो उस पर ही बेस्ड था। सो इंटर्नशिप का मोस्ट प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा रोल है, सो कैन यू जस्ट गिव मी द ब्रीफ की मारुति सुजुकी की वो इंटर्नशिप कैसी थी, एंड ऑल्सो यू टोल्ड मी लाइक यू आर वर्किंग विद फ्यू NGOs, राइट? सो एक उसका भी आइडिया दे पाओगे आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में क्या होता है ना,
लेट्स सपोज कि आई एम डन विद माई बैचलर डिग्री. आफ्टर दैट 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जाते हैं वर्क एक्स की तरफ, एंड उनमें से जो रिमेनिंग 10 to 20% रहते हैं वो जाते हैं इफ़ दे आर प्लानिंग फॉर द MBA, तो कि यार कैट प्रिपेयर कर लेते हैं, ये चीज़ पे. तो वहाँ पे फिर बच्चों का ना गैप आ जाता है. तो वो गैप बहुत लाइक इंडिया में तो आई डोंट नो, अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में देखोगे, बिकॉज आई हैव अ वर्क एक्स ऑफ टीम लीड राइट और इन ओवरसीज एजुकेशन, ओवरसीज इंडस्ट्री, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली बच्चों को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो एडमिट भी नहीं ले रहे हैं उनका. तो वहाँ पे आप बताओगे कि NGO का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटर्नशिप का, ताकि सबको आइडिया मिल जाए और वो अपने आप को भी इनरोल कर पाए. अगर कोई इस इशू से फेस कर रहा है कि यार आई हैव अ गैप, मेरे को इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, तो दे कैन गो विद द NGOs और समथिंग लाइक दिस. तो आप उसका एक आइडिया दे पाओगे? ओके, सो मैंने NGO में काम किया था बिकॉज दैट वाज समथिंग जो मैं genuinely इंटरेस्टेड थी. आई हैव सीन माई फैमिली डूइंग दैट, आई हैव सीन माई people around me doing that. So basically तो it was an inner choice, right? yes, कि मेरे that को was करना the है. inner choice Perfect. कि you should do something for the society Mhm. at large. So but yes, definitely internships बहुत helpful होते हैं. Talking about the MBA students or the BBA students, so होता क्या है, when you are going to a college, you get the theoretical knowledge. तुम कभी भी वो चीज़ इमेजिन नहीं कर पाते कि कॉर्पोरेट में ये चीज़ कैसे अप्लाई होगी. You Industry just में क्या चल रहा है? exactly theoretically you are looking at the concepts, reading books, notes, PPTs and everything, but after that what goes beyond the college life is the corporate life. वो आपको इंटर्नशिप में एक आइडिया मिल जाता Exactly, है, वो राइट? आप जो गैप होता है वो आपका इंटर्नशिप ब्रिज कर देता है उस गैप को. परफेक्ट. और फिर मेरे अकॉर्डिंगली लाइक जितना मेरे को लाइक लगता है कि, और फिर हम जहाँ पे लैग कर रहे हैं इंटर्नशिप में, हमें जाके आइडिया मिल जाता है कि यार मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, और मैं अब ये कॉलेज का मेरा जो रिमेनिंग सेमेस्टर्स बचे हैं ना, वहाँ जाके मैं ये गैप को फिलअप करूँगा. लाइक मेरा कहाँ पे लैग आ रहा है. लाइक अगर लाइक आई एम द स्टूडेंट फ्रॉम बिजनेस एनालिटिक्स, तो मेरे को पता है कि यार मैं कम्युनिकेशन में लैग कर रहा हूँ, या मैं अपने टेक जो भी चीज़ें हैं लाइक पाइथन एसक्यूएल इन सब में, तो मैं अगर यहाँ पे लैग कर रहा हूँ तो मैं कॉलेज जाऊँगा थर्ड सेम में, या आगे कोई फर्दर स्टडी के लिए जाऊँगा, तो मैं वहाँ पे वो गैप फिलअप कर लूँगा, राइट? सो इट्स द होल आइडिया ऑफ इंटर्नशिप अकॉर्डिंग टू यू. सो बेसिकली जैसे मारुति सुजुकी की बात करें, जब मैंने मारुति सुजुकी में इंटर्नशिप की थी तो वो मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट में थी. ऑलराइट. और उस टाइम पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिवाली फेस्टिवल सीजन चल रहा था, दिवाली क्रिसमस. सो उनके मोस्टली ऑटोमोबाइल कंपनीज उस टाइम पे सारे ऑफर्स कैंपेन्स एक्टिव होते हैं, दे आर एक्टिव की. हाँ. सो उन्होंने कूपन्स निकाले थे, स्क्रैच कार्ड्स थे, यू हैव टू कन्वर्ट पोटेंशियल कस्टमर्स टू द पोटेंशियल क्लाइंट्स टू द कस्टमर्स. सो वो सारी चीज़ें थी. तो वो मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि हाँ, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ and how you have to interact with the customers and make them convinced that this product So is guys, right. मैं आपको बता दूं, सेल्स एंड मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि यू हैव टू डायरेक्टली रीच आउट टू द कस्टमर कि भाई हमें सेल करनी है. अभी इट्स अ टाइम ऑफ लाइक डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको लीड्स ऑनलाइन जनरेट करनी पड़ती हैं, एड्स रन होते हैं, आपको CRM पे भी आई थिंक काम करना पड़ता है एज अ सेल्स इंटर्न या सेल्स गाय, क्योंकि आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑफ सेल्स गाय. तो वहाँ पे हम लीड जनरेट करते थे CRM पे, तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी नई नई चीज़ें पता होती हैं, राइट? जो हमें अभी इफ़ आई टॉक अबाउट CRM थिंग या कुछ भी थिंग ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, तो अभी हम उस लेवल पे MBA में भी नहीं पहुँचे हैं, तो मोस्ट वाली बच्चों को नहीं पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर कैसे रन होते हैं, क्या होता है. सो आई हाईली सजेस्ट कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो विद द इंटर्नशिप, अगर आपके पास वर्क एक्स नहीं है तो जस्ट गो विद दीज सॉफ्टवेयर्स, ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा. और मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के ऑलमोस्ट सेम चीज़ CRM होते हैं, कुछ अपने थर्ड पार्टी से वो करती हैं, कुछ के खुद से. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट MBA लाइफ. यू आर इन UPS, तो अभी आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाई UPS. आपने PGDM इतने अच्छे कॉलेज से किया, राइट? उसके बाद आपके पास अच्छा खासा वर्क एक्स हो गया था, देन व्हाई UPS? आपको इस कॉलेज के बारे में थोड़ा लाइक द बेसिक आइडिया, जो भी अभी UPS में नहीं भी है, जो देखना चाह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल उनको लॉजिस्टिक ही लेनी है इन द फ्यूचर, तो आप उनको गाइड कर पाओ. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इंडिया में बहुत कम कॉलेजेस में है. दिस इज अ वेरी नीश कोर्स, सो इट इज़ नॉट समथिंग मार्केटिंग, HR, फाइनेंस कहीं भी मिल जाएगा इन whichever college you want to go. Plus it's a flagship program. UPS is known for the energy sector. Right. So yes, one of the reasons I chose UPS. Secondly, the place, the vibe it has, the nature. True that. The location of university is too good. Like मैं सजेस्ट करूँगा if you are planning to go with the colleges जहाँ पे आपको
घूमने फिरने का भी अच्छी लोकेशन मिले, आपको जो स्टडी के लिए भी जो माहौल हो, द कॉलेज कैंपस लाइफ, द होली वाइब जो आपको चाहिए ना, वो यूपीएस आई थिंक दे सकती है दे उसमें। सकते हैं। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई लॉजिस्टिक ओनली, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन जो यूपीएस हमें प्रोवाइड करता है, लाइक आई एम द बीए स्टूडेंट राइट, ऑयल एंड गैस प्रोग्राम भी इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सो व्हाई लॉजिस्टिक ओनली, लाइक और कोई प्रोग्राम क्यों नहीं? बिकॉज जब मैंने आपको बताया मैं इवेंट मैनेजमेंट में थी इससे परफेक्ट, पहले, परफेक्ट। तो इवेंट मैनेजमेंट में आई हैव वर्कड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हॉस्पिटैलिटी, डेकोर, एंड देयर वाज दिस डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स. So that was just a gist of what I went through in the last 1.5 year. तो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन का इंटरेस्ट मेरा वहाँ से डेवलप हुआ था. आई गॉट टू नो दैट यूपीएस इज ऑफरिंग दिस कोर्स इन एमबीए एंड आई वांटेड टू डू एमबीए एज आई टोल्ड यू. So yes, logistics and supply chain is something I can also say it is a booming sector. So सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कन्वे कि मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस में मोस्टली इंडिया का 90% आई थिंक 90 to 95% बच्चे इन्हीं प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, और अगर आपको वहाँ पे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम मिल रहा है जो बहुत कम कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने वो चूज़ किया राइट, एंड आपके पास एक पास्ट एक्सपीरियंस भी था, आई मीन यू वर्कड इन डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स एज यू सेड, तो वहाँ पे भी लॉजिस्टिक्स आप रिलेट कर पा रहे थे, तो जो आपके मैं पास इवेंट्स में थी हम्म। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था. इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एग्जैक्टली. Perfect. So this is the reason why logistic. Alright. So अभी it's totally up to you because I'm not a logistic student, right? तो मेरे को पता नहीं है what are the different different kind of projects or different different kind of apps or softwares that a logistic student use. So can you just mention 2 or 3 different different softwares जो आपको भी logistic में like in the first sem or the second sem बताए गए हो? So Excel is basic for everyone. Right, right. That हाँ. you already told. If you are working in a private sector, guys, फ्रॉम स्क्रैच, अगर आप एज अ प्रोसेस एक्सपर्ट से लेके फ्रॉम द सीईओ लेवल, एक्सेल आना चाहिए, दैट्स द बेसिक नीड. To be very frank, I was not good with Excel. I am still not proficient with the Excel, I would say. अभी But, इस कॉन्वर्सेशन का संजीव सर बुरा मान जाएंगे. संजीव सर को ये पता होगा. ओके. तो but yes guys, Excel is very important. You have to be hands on with Excel. And moving on to the apps or the different tools and techniques. So SAP is one of those. SAP. It is very important. Every other company uses it, even if they have their own some software. But they will definitely use SAP for some or the other purpose, either for selling and distribution, or for material management, or for some other departments. So SAP is very important. REST, as you told, Python, SQL, ये सीख जाओ तो और भी अच्छा है. That is a So, +1. अगर कोई आ रहा है एमबीए के लिए, लाइक इट्स एडवाइस फ्रॉम यू आई थिंक कि सो जस्ट गेट द बेटर नॉलेज ऑफ एक्सेल. एक्सेल तो आई थिंक बेसिक्स है, और Advanced Excel. हाँ, मतलब पहले से एक्सेल to आना advanced. चाहिए. हाँ, यू गॉट टू नो द टूल्स नेम एग्जैक्टली कि वी लुकअप क्या है, एच लुकअप क्या है, सैप का भी आइडिया होना चाहिए, और बेसिक जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम बेसिक लाइफ में भी यूज़ करते हैं, तो उनका आइडिया होना चाहिए. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यू ऑल्सो गिव द आइडिया अबाउट द सॉफ्टवेयर. सो मेरे को एक क्वेश्चन था, अभी रिसेंटली हमारी इंडस्ट्री में भी या इन क्लासरूम ऑल्सो हम एआई टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, राइट? सो मेरे को जानना था कि इन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट ऑल्सो वी यूजेस एआई और समथिंग लाइक दिस फॉर वर्क. AI is everywhere. To be very frank, guys, AI is everywhere. Because AI is something जो हम सुनते हैं ना कि AI जॉब टेक ओवर कर लेगा, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में बहुत सच भी है. मतलब लॉजिस्टिक में भी You- कर रहा है, नॉट ओनली बीए और डीए. Not exactly, but yes, अगर आप AI को यूज़ करना नहीं सीखोगे तो AI आपकी जगह रिप्लेस कर ही देगा. You should be good with AI, that how you want to, like what is the use. Everyone can use AI, but उससे interpret क्या करोगे? That is the whole point. एग्जैक्टली. I would also like to add one more thing. In logistics and supply chain, there is a department which is forecasting. फोरकास्टिंग. So you forecast about the sales, you forecast about the production, you forecast about the other things. So that is data driven सो nowadays. उसके लिए स्टैट्स की भी MI, नॉलेज आई थिंक, ML, machine machine learning. AI, ML. So उसके लिए भी you need to be very good with the softwares, the data, the AI. So that is very important.
सो बेसिकली स्टैट्स की भी ज़रूरत है, एमएल की भी ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं है कि आई एम फ्रॉम द सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट तो मेरे को ये सॉफ्टवेयर वगैरह का कुछ आइडिया नहीं होना चाहिए, रफ आइडिया तो होना चाहिए बेसिकली। जब हम एमबीए फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हम सोचते हैं इतने सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों इसका पढ़ा क्या रहे हैं, यूज है। राइट राइट। आई एम फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, व्हाई विल आई रीड मार्केटिंग, हाँ। व्हाई विल आई स्टडी एचआर, बट एट द एंड ऑफ द डे गाइस एवरीथिंग इज एडिंग टू योर स्किल सेट, योर रेज्यूमे, योर नॉलेज। लाइक अगर मैं रेज्यूमे की बात करूँ, सो इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग आर द पार्ट ऑफ द रेज्यूमे बिल्डिंग, राइट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी कम टू एकेट्स। एकेट्स इंपॉर्टेंट है, लाइक यू हैव ऑलरेडी गॉट प्लेस्ड इन ब्रिटानिया, आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा कंपनीज के इंटरव्यूज़ भी दिए होंगे। तो वहाँ पे रेज्यूमे सिलेक्शन के लिए या अच्छा रेज्यूमे दिखाने के लिए एकेट्स की इम्पोर्टेंस कितनी है? एकेट्स की इम्पोर्टेंस इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वो तो है, डेफिनेटली है, बिकॉज एकेट्स इज समथिंग जो आपके रिज्यूमे में सबसे ऊपर दिखता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ कैंपस प्लेसमेंट, कोई भी कंपनी आएगी वो सबसे पहले देखेगी 7.4 और लेट्स टेक 9.4 और 6, तो वो अपना परसेप्शन उसके अकॉर्डिंग बना लेती है और और I वो think उसी के top- अकॉर्डिंग फिर आपसे क्वेश्चंस पूछेगी। एग्जैक्ट, और टॉप एमएनसीज का क्राइटेरिया भी वही होता है, कोई 8 सीजीपीए मांगेगा, कोई 8.5 मांगेगा, तो आपको पहले ही मतलब प्रिपेयर आज की डेट में अभी हमारे कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है, तो उस टाइम पे भी 60% इज तो मिनिमम क्राइटेरिया। आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी कंपनी विद लेस देन मिनिमम 60% इन योर 10th 12th ग्रेजुएशन एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाइज जिनके पास वर्क एक्स है, मैं लाइक जनरली बता रहा हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो हैव वर्क एक्स ऑफ 3 ईयर समथिंग लाइक दिस, तो मैं भी यही सोच के आया था इन द स्टार्टिंग कि यार आई हैव द वर्क एक्स, एक सीजीपीए मेंटेन कर लूँगा और वर्क एक्स के बेस पे मैं जॉब ले लूँगा। बट यहाँ आके मेरे को ये चीज़ पता चली कि यार डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के भी क्राइटेरियाज होते हैं कि उनके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो इन द कंसल्टिंग फील्ड और समथिंग लाइक दिस, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा एकेट्स मैटर कर। नाउ विल जम्प टू द केस स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट्स। लाइक कैन यू जस्ट गिव अस द ब्रीफ आइडिया, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, केस स्टडीज़ भी यहाँ पे, लाइक इन यूपीएस मैंने ये चीज़ देखी है कि टीचर्स जो है बेसिकली हमारी फैकल्टीज़ में बहुत ज़्यादा बच्चों को बोलते हैं कि यार जस्ट गो विद द केस स्टडीज़, तो इसका कितना ज़्यादा रिज्यूमे बिल्डिंग में सेक्शन कवर होता है, कितना परसेंट है? सो इन द प्रोजेक्ट्स एंड द लाइव प्रोजेक्ट्स आई वुड से या केस स्टडीज, वो आपको एक्चुअली एक आइडिया देती है दैट हाउ थिंग्स आर वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट गोइंग राइट, दैट इन द कॉर्पोरेट फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में बहुत सारी केस स्टडीज होती हैं। तो उसमें आपको पता चलता है, फॉर एग्जांपल मुझे याद है जहाँ तक एक नोकिया की केस स्टडी थी हमारी, कि नोकिया के हैंडसेट रिकॉल हुए थे, बहुत सारे वापस उन्होंने रिकॉल किया था। एग्जैक्टली। सो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट, डिफेक्टेड था, क्या रीजन था, तो वो लॉजिस्टिक्स से बहुत रिलेटेड है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में एक रिवर्स लॉजिस्टिक्स कॉन्सेप्ट होता है। सो रिवर्स लॉजिस्टिक्स इज बेसिकली जो भी हम ऑर्डर करते हैं मिंत्रा पे, वो रिटर्न करते हैं हम कभी, तो वो रिवर्स लॉजिस्टिक्स होता है। वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो ये जो केस स्टडीज होती हैं, ये कहने को तो हमारी मार्केटिंग की केस स्टडी थी, बट सेम थिंग हमारी लॉजिस्टिक्स में भी यूज हो रही है। तो जितने भी ये केस स्टडीज हैं, लाइव प्रोजेक्ट है हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक लाइव प्रोजेक्ट था, ओबी, उसमें हमारा एक केस स्टडी थी, लाइव प्रोजेक्ट था। तो लाइव प्रोजेक्ट में उन्होंने हमें विजिट ही करने बोला था कि आप विजिट करो एंड जस्ट सी व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग फॉर देयर एम्प्लॉयज। अगर वो पंच करके आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस वैसे काउंट हो रही है, दैट ऑल्सो यू नीड टू लाइक एड इन योर रिपोर्ट। आप वो भी ऑब्जर्व करके आओ, और वो क्या यूज़ कर रहे हैं, अगर उनका कोई लीव का पोर्टल है, अगर उनका कोई और पोर्टल है। तो हमने अशोक लेलैंड चूज़ किया था, तो हमने वहाँ पे विजिट किया था, बेसिकली काइंड ऑफ इंडस्ट्री विजिट। एग्जैक्टली तो वो बहुत ज़रूरी होता है। हमारा ऐसे एक ब्लिंकिट का विजिट था डिमांड फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग के लिए, वहाँ पे हमें एनालिटिक्स पता चले थे। तो एवरीथिंग इज वेरी इंटरलेटेड एंड यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट थिंग्स व्हेन यू डू इट प्रैक्टिकली। और अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो कि केस स्टडीज जो होते हैं ना, उससे हम पास्ट ट्रेंड्स भी पता कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि अभी हम प्रेजेंट का भी देख सकते हैं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, अभी करंट ट्रेंड्स है वो क्या है, और आप क्या प्रेडिक्ट करोगे 5 ईयर्स के लिए, वो भी आप बता सकते हो एक आइडिया लेके। बट यू कैन टेल अस द पास्ट ट्रेंड्स। तो वो केस स्टडी से हमें आइडिया लग जाता है बेसिकली, जो आपने बताया जैसे नोकिया वाली केस स्टडी थी, तो उससे हम पता कर सकते हैं। इज इट नेसेसरी, मतलब कुछ लोग मन में सोचते हैं कि यार आई एम डन विद द इंटर्नशिप, मैं केस स्टडीज़ नहीं करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स नहीं करता हूँ, तो उससे कहीं ना कहीं रेज्यूमे तो आपका कमज़ोर पड़ेगा इस तो। अभी मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ और हम अभी भी वी आर डूइंग केस स्टडीज, वी आर डूइंग प्रेजेंटेशंस, वी आर डूइंग लाइव प्रोजेक्ट्स। आई स्टिल हैव टू गो फॉर अ लाइव प्रोजेक्ट
सेल्स में जैसे आपने बताया हाँ, CRM का, हाँ। तो अभी हमारा CRM का ही लाइफ प्रोजेक्ट है एक। यू हैव टू विजिट एनी ग्रोसरी, होम केयर, पर्सनल केयर, एनीथिंग हॉस्पिटैलिटी स्टोर एंड सी व्हाट CRM प्रैक्टिसेस दे आर फॉलोइंग। ऑल राइट, सो वो कौन सा So, CRM यूज कर कर रहे रहे हैं? हैं और वो कितना बेनिफिशियल है उनके लिए। नाउ आई जस्ट वांटेड टू नो, लाइक यू गॉट प्लेस, आप जब इंटरव्यूज भी दे रहे होगे राइट, तो आपका इंटरव्यूज का कैसा एक्सपीरियंस था? अगर मैं उसको सम अप करूं कि आप मेरे को बताओ सारी कंपनीज जो जो भी आपने दिए इंटरव्यूज, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और कौन कौन से मार्केटिंग ट्रेंड्स कंपनीज फॉलो कर रही हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है मोस्टली कंपनीज का, और आपको क्या फील हुआ कि मैं इसमें अच्छी हूँ या मेरे को यहाँ पे लैग किया, सो दैट जो बच्चे आगे देंगे तो उनको हेल्पफुल रहेगा ये चीज़। सो इंटरव्यूज में एक तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद वॉट एवर यू आर सेइंग। तुम सो बेसिकली जस्ट कम्युनिकेशन बोलने के स्किल्स। लिए, यस, तुम बोलने के लिए कुछ भी मत बोल दो। अगर तुमने रेज्यूमे में लिखा है कि यू आर गुड विद सैप, यू आर गुड विद एक्सेल, स्किल्स में लिखा है, इंटरेस्ट में लिखा है बैडमिंटन, प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट, हर एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। वो तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि तुम्हारा फेवरेट फुटबॉलर कौन सा है, फुटबॉल तुम्हें तुमने नेशनल लेवल पे खेला है क्या, या XYZ। सो यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद दैट कि तुमने रेज्यूमे में जो लिखा है वो तुम्हें सब पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं लिख देना है कि हाँ, हाँ ये देखा तो तो जो मतलब लिख दिया। ये इंडस्ट्री की डिमांड है, ये मार्केट की डिमांड है, तो मैंने मैंने ये वो लिख दिया, वो- ऐसा नहीं। और दूसरी चीज़, अपने अगर आपकी कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस है, कोई इंटर्नशिप्स हैं, बहुत अच्छे से उसमें पहले तो काम करो। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। ये नहीं कि आप वहाँ पे कुछ भी काम किया आपने, आप XYZ यहाँ पे आके कुछ भी बोल रहे हो, बिकॉज दे कैन कैच इट, दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, सो दे नो that how things work. And now if you are going and saying that I have done this, I have done that, they exactly know that internship, a guy who is an intern or a girl who वो is an क्या intern, करता है वो कितना इंडस्ट्री करता में, है, उसको राइट। कितना डेटा मिलता है, बिकॉज कंपनी की चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं। सो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे आपने अभी लाइक हम जो बैक से डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया था कि आपका जो ब्रिटेनिया वाला इंटरव्यू था वो पूरा सराउंडेड था अबाउट योर इंटर्नशिप, तो उसका आप एक आइडिया दे पाओगे कि जो आपने इंटर्नशिप में काम किया उससे रिलेटेड ही उन्होंने मोस्टली क्वेश्चंस पूछे, कि जो भी आपने मेंशन किया। सो ब्रिटानिया के इंटरव्यू में मेरे जो क्वेश्चंस थे, मुझसे जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे रिक्रूटर्स ने, वो मोस्टली अराउंड व्हाट family background, what is your family background, about why event management, and then how logistics and supply chain management. जो अभी आपने आंसर किया, हाँ एग्जैक्टली। राइट सो राइट। गाइज, अगर आपका कुछ भी पास्ट है, BBA आपने कहीं से किया है, BCom किया है, BA किया है, या आप बीच में कभी ड्रॉप लेके कुछ और परस्यू कर रहे थे, बट देन सडनली यू थॉट ऑफ डूइंग MBA, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाई यू आर डूइंग दिस शिफ्ट। आप उस शिफ्ट को क्यों कर रहे हो, आपको वो पता होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो मेकिंग अ शिफ्ट, तो आप मोस्टली ये ट्राई करो कि आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस या ऐसा कुछ हो जिससे आप बता सको कि मैंने ये शिफ्ट क्यों किया। एग्जैक्टली। और मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे इंटर्नशिप के अराउंड थे। तो आपकी जो समर इंटर्नशिप होती है MBA में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपसे उसी के अराउंड क्वेश्चंस पूछते हैं जनरली। There are times few students were also asked to solve a numerical. Few students were asked about the 5PL. So 5PL is fifth party logistics. तो ये भी डोमेन नॉलेज है। आप जितना अपने डोमेन को स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना आप वहाँ पे ज़्यादा फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली आप कन्वे कर पाओगे रिक्रूटर को। एंड आई हैव अ पर्सनल क्वेश्चन, लाइक जैसे आपने बोला डोमेन नॉलेज, तो वो ज़रूरी है। अगर मैं अभी ये कहूँ आप लॉजिस्टिक की हो, डोमेन नॉलेज तो ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि मार्केटिंग है जस्ट फॉर द शेक ऑफ एकेट्स, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अकाउंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कुछ पूछ दिया, या हमने जो भी पढ़ा है, कोई लॉज वगैरह या कोई केस स्टडी थ्योरी वगैरह, कुछ भी पूछ सकते हैं। दे कैन मतलब आप ये मत सोचो कि आई एम नॉट फ्रॉम मार्केटिंग बैकग्राउंड, तो वो मुझसे उससे रिलेटेड कुछ नहीं मार्केटिंग के पूछेंगे। क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। आप HR से नहीं हो तो वो आपसे HR से रिलेटेड नहीं पूछेंगे। मे बी दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक विद द HR क्वेश्चंस और मार्केटिंग क्वेश्चंस, बट कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिंक्ड होता है। उससे आपका एकेट्स का भी आइडिया लग लग जाता इफ है। यू हैव द नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, तो उनको पता है कि इस बंदे का अगर 8.5 CGPA, मतलब ही इज और शी इज गुड विद द एकेट्स और मार्केटिंग के दे सब्जेक्ट्स। ऑल्सो आस्क यू क्वेश्चंस लाइक, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 10th 12th में यू हैव जस्ट 60%, 70%, एंड देन सडनली आपने BBA MBA में यू जस्ट गॉट 9 CGPA, 8 CGPA,
then how is that Yes, possible? yeah, right, right. Whole your life you have been an average student, and then how come suddenly you are becoming a super brilliant student? So that is also a question, so be prepared for that as well. वो मोटिवेशन के रिगार्डिंग कि ऐसी कहाँ से मोटिवेशन आ गई कि कॉलेज में इतने ज़्यादा मार्क्स आने लगे अचानक से। सर्टिफिकेशन आप अगर कोई लिख रहे हो तो सर्टिफिकेशन के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। इंटरव्यू में व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस सेज दैट इज कि यू हैव टू बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट। तुम अगर कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि दे विल ट्राई टू आस्क यू डिग आउट थिंग्स। घुमा फिरा के पूछना हाँ, उनका तो वो चाहेंगे कि ये कहीं ना कहीं फंबल करे, कहीं ना कहीं अटके, बट तुम कितने कॉन्फिडेंट हो विल शो दैम कि तुम आगे जाके कितने अच्छे से काम करोगे। और रिज्यूमे को पूरा थॉरली जितना हो सके जो भी लिख रहे हो, राइट, वो हमें एकदम से परफेक्ट रहना है उस चीज अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, प्लीज डू नॉट मेंशन, प्लीज डू नॉट मेंशन। मेन आप- पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट आप गाइस। अगर, क्योंकि ऐसा मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है कि उनसे पूछा गया व्हाट योर फादर, व्हाट्स योर फादर्स ऑक्यूपेशन, एंड दे जस्ट से इट वेरी कैजुअली, बिजनेसमैन। सो देन वो एक आपका ऐसा पॉइंट हो जाता है कि उसके बाद वो डेफिनेटली ऐसे हो जाते हैं कि ये तो कल को चला जाएगा, घर का वो बिजनेस है, mindset, ही विल हाँ। डेफिनेटली जॉइन बिजनेस इवन इफ ही इज सेइंग कि आई विल बी देयर फॉर 5 इयर्स 7 इयर्स 10 इयर्स, बट दे विल डेफिनेटली थिंक कि ये तो चला जाएगा। एंड एक्चुअली गाइस ये चीज़ मैटर करती है। ये भी मेंशन करना कि जब तक लाइक आई एम लुकिंग फॉर द ग्रोथ हियर ओनली, जब तक मेरे को ग्रोथ और मिल रही है और मतलब वर्क कल्चर अच्छा है तो आई विल वर्क हियर, मतलब उनको एक अंदर से कुछ सेटिस्फेक्शन दिलाना क्वेश्चंस के चाहिए। लिए तो आपको प्रिपेयर रहना ही चाहिए। फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, सेकंड आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स। नेक्स्ट, व्हाई दिस कंपनी एंड व्हाई दिस रोल, from your accounts, why this college, why this program, if there is a shift, there is a education gap or anything, वो justify करना आपको आना चाहिए। So you have to be ready with these answers, and also you have to be ready with some questions. If you, so basically most of the times recruiters ask you, do you have some questions for us? And at that time you are blank. You just be like, you smile and say no, because you just think, or either you ask about the salary, so that is very wrong. At the moment the only point you said that salary kitni hai, location kya hai, they will have a negative impact, and whole positive thing will go to a negative side. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू लाइक क्वेश्चन कैसा फ्रेम करना चाहिए, लाइक वी हैव टू आस्क अबाउट द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन, द वर्क एथिक्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं, You can ask for feedbacks. You can definitely ask for feedbacks. That how was my interview, any recommendations, any suggestions. from your side, right? Yes, you can ask about the company. You can ask about. You can read about the projects or the missions they are doing currently. You can ask about that. Sustainability is a very big issue these days. We have been hearing this fancy word sustainability. Right. So you can ask about what sustainable practices you are following. If it's some FMCG, some manufacturing company. Basically, So- it's a concept of marketing, right? We have to ask the, like every company have their own value and so अभी बीच में ना आपने एक वर्ड बोला था कि you have to be specific about your role. तो JD, it's JD, the yes. most important thing जो बच्चे लैक करते हैं कि कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं पर वो JD पढ़ा ही नहीं उन्होंने कि भाई किस पोजीशन के लिए आप जा रहे हो। जब भी आपके पास कंपनी कॉलेज में आए, आपके किसी भी पोर्टल के थ्रू, किसी भी फैकल्टी के थ्रू, कहीं से भी आए, इवन इनफैक्ट नॉट इवन इन कॉलेज, आप अगर लिंक्डइन से भी कोल्ड अप्लाई कर रहे हो, कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड मेल्स, सो आप उस टाइम पे भी सबसे पहले JD देखो। अगर आपके पास उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, अपने रोल्स को, अपने रेज्यूमे को उससे अलाइन करो कि ये कितना, मैं कितना फिट हूँ इस रोल के लिए। Just because of some good package, you can't go to anywhere, because job satisfaction, we have been hearing this word job satisfaction. True. So आप JD देखो, और उससे भी पहले, इन सबसे पहले आता है एक GD, which is group discussion. Group discussion में आज की डेट में most of the questions are around tariffs, the current trends, what is going on, tariff. जो चल रहा है, right? Exactly, tariff का आपने बहुत सुना होगा, डोनाल्ड ट्रम्प हाँ, ने ये कर US दिया। Exactly. tariff, right. तो ये सारी चीजें AI से रिलेटेड, AI कैसे यूज हो रहा है, हमारे जितने भी GD के टॉपिक्स थे वो मोस्टली इसी के अराउंड थे। एंड आफ्टर इवन ब्रिटानिया, अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव केम इन द कैंपस, सो उनके भी GD के टॉपिक्स इसी के अराउंड होते हैं। टेरिफ्स, AI,
सो then बेसिकली corporate. करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग हमें अटेंटिव रहना है, लाइक Attentive यू हैव रहना टू है. रीड न्यूज़पेपर डेली. अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो जस्ट गो विद द एप्स. आजकल बहुत सारे एप्स भी Apps हैं हो तो उस गए. पर करंट ट्रेंड्स के. तो जीडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फिर आपका कंपनी का जो भी जेडी है, और आफ्टर दैट आपके जो भी रेज्यूमे आपने बनाया, आपको अपने रोल के अकॉर्डिंग, अपने जॉब रोल के अकॉर्डिंग अपने अगर आपका ये resume को. कंपनी का एप्टीट्यूड टेस्ट का भी है रिक्वायरमेंट, तो आप एप्टी के साथ भी बहुत अच्छे होगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज दैट विल गिव यू हायर चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड. Perfect. So, it's my last question on MBA or everything regarding your whole job role. जैसे like, is there any kind of biasness कि किसी के पास ज़्यादा वर्क एक्स है या किसी के पास कम वर्क एक्स, तो कंपनी उस बंदे को अलग नज़रिए से देखेगी, कम वाले को अलग नज़रिए से देखेगी? Is this like a trend है इंडस्ट्री में, ऐसा कंपनीज देखती हैं ऐसे? Not exactly. I don't think so. Because, we can say some companies have this requirement. They want some work ex with like 2 years of work ex, 3 years of work ex. तो वो पहले ही mention कर देते हैं. The Oh, time you alright. get the JD, the company's profile and everything, Okay. they already mention it that we are looking guys for this is preferred, preferable. So वो फिर आपको उस नज़र से देखेंगे, तो आप तो पहले ही समझ जाओगे. बट व्हेन यू सी फॉर सम कंपनीज दे फोकस ऑन द फ्रेशर्स. तो ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स का कोई मतलब वैल्यू नहीं है, या फ्रेशर्स को वो ऐसे देखेंगे कि अरे इनके पास तो वर्क एक्स ही नहीं है. बट एक बल्कि प्लस पॉइंट भी होता है, मुझे लगता है, जो कि फ्रेशर्स को वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वी कैन मोल्ड दिस गाय. According to our requirement exactly, only. if there is a guy who has been in the industry, worked, he knows in and out everything. Everything about the industry. He has been there for 3 to 4 years. You can't mold him, but you can mold a guy जिसने अभी अभी start किया है, जो अब career अपना start करेगा, देखेगा, समझेगा. You can train him with skills. But जो already train होके आया, आप चाहोगे कि अब इसको upgrade नहीं करने कर के लिए सकते और आप. आगे ले जाओ, तो वो Exactly. फिर आपको उतना ही invest भी करना पड़ेगा. I just wanted to know about the whole college life. जो भी आपने MBA यहाँ से किया है, like you have completed your bachelor's from Pune, उसके बाद देहरादून, right, this city. So I just wanted to know the whole experience of MBA and देहरादून. Like in a single para अगर आप describe करोगे कि the location and everything. और जो बच्चे like admission लेने का सोच रहे हैं next year, तो उनको क्या क्या advantages होंगे? Like apart from academics. Acads we already talked about. So now when you talk about the college life is something जो दोबारा नहीं मिलती. True. Genuinely नहीं मिलती. मतलब if you have college life, live it, enjoy it, take career, placement, everything very seriously, but at the same time don't compromise with your college life, because you are not going to get this again. अगर हम यूपीएस की बात करें तो कैंपस लोकेशन आपको पता ही होगी कितनी अच्छी है. Perfect. और the vibe, the friends, Masuri, it is very nearby. So you should like definitely enjoy your college life. You're not going to get these days back. Recently अभी मेरी जूनियर से इंटरेक्शन हुआ था, तो उसने मुझसे पूछा मैं क्या कोर्स कर लूँ, क्या पढ़ लूँ, ऐसा क्या कर लूँ कि मतलब मुझे सब समझ आ जाए. मैंने बोला you can't get everything at once. What you can do is, this is the time you can learn, explore, enjoy, and then finally crack a placement. So basically सारे फैक्टर्स को एक साथ में रखना है. That is how what a work-life balance Right. is. ऐसा नहीं है कि एकेड्स में एकेड्स से कि मैं एक MBA का बच्चा हूँ, मैं मेरे को एडमिशन लेना है and you are my senior. So what are like a kind of roadmap you will suggest to me कि भाई if you are coming to UPS or if you are planning to go with the logistic, तो this is the roadmap you have to follow. मतलब let's say I'm from arts background, मेरे पास वर्क एक्स भी दूसरी इंडस्ट्री का है, मेरे पास कोई रिलेटेबल वर्क एक्स नहीं है. सो मेरे को ये कोर्सेज कर लेनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन हो लॉजिस्टिक का जो मैं पहले से करके आ रखा हूँ, या मैं कॉलेज में आके कर लूँ, फिर मेरे को एकेड्स भी लेने चलने. तो व्हाट्स अ परफेक्ट रोड मैप? लाइक अभी यू आर इन द 3rd सेमेस्टर, राइट? तो आपको अभी तक लगा हो कि जो आपने फॉलो किया और जो आप और अच्छा कर सकते थे, जो आगे के लिए हेल्पफुल. So roadmap to come to UPS might not be very difficult and hard. You can come here easily by CAT, UPS Net, UPS MET, UPS entrance exam, or you can get admission. But the roadmap to a successful career and journey, Exactly. to be in corporate. So what we have initially started, what the name of this podcast is, Yeah, campus to corporate. Right. That is difficult. That roadmap you have to. So from my point of view, you should
at the very first day whenever you join this college, you should have this thing in your mind कि जॉब तो करनी है पर कॉलेज लाइफ भी साथ में एंजॉय जी करनी है. enjoy. और जितनी भी चीज़ें, मतलब अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं, तो हम वो अपने डेडिकेशन से करेंगे, जस्ट नॉट फॉर द नेम सेक वी आर डूइंग इट. तो वो चीज़ हमें उस चीज़ के लिए बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए. सेकेंड इज अपने फैकल्टीज से बहुत अच्छे टच में रहो. फैकल्टीज आर द बेस्ट मेंटोर्स. एंड यूपीएस के पास बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं गाइस. मैं आपको बताऊं, लाइक इफ यू आर लाइक प्लानिंग फॉर यूपीएस तो यू हैव टॉप नॉच प्रोफेसर्स और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल Plus alumni network. I have always been listening to this alumni network. But it indeed it is very important, guys. Very very important, because if you have alumni network, they have their networks, their friends in the corporate, their connections. So that helps you a lot to understand what is actually happening in the industry. You get to connect with the industry professionals. So if I'm not wrong, you must have attended some guest lectures here. So those guest lecture are from the industry experts itself. right. So आपको उस गेस्ट लेक्चर में एक्चुअली पता चलता है कि क्या चल रहा है मार्केट में. लाइक जब मैं यूपीएस ज्वाइन ही किया था इन द मंथ ऑफ जून ओनली, तो विद इन 15 days आई हैव अटेंडेड लाइक 3 to 4 guest lectures and I'm like कि इतना ज़्यादा alumni connect, मतलब there are 14 to 15 guests are sitting on the stage, someone is from this group, someone is from that group, that company, and they are like the senior most We are positions still guy. having guest lectures. We had this Saturday. We will have next Saturday as well. We are going to have this Saturday also. So, and even on Monday and Tuesday our guest lecture is scheduled. So alumni connection of UPS is too good man. Like Yes. अगर आपने सुना है कोई भी colleges आपको बोल रहे हैं कि alumni तो UPS का काफी ज़्यादा अच्छा है. काफी ज्यादा ये अच्छा चीज़ है. तो मैंने भी पर्सनली और एक्सपीरियंस गेस्ट लेक्चर आपको लगता होगा इट इज वेरी बोरिंग, क्या ही फायदा होगा. वे टू बट इंटरेक्टिव. वे टू इंटरेक्टिव एंड वे टू इंफॉर्मेटिव. ट्रू दैट. बिकॉज आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सुन रहे हो ना, वो तो आपको जो बताएगा वो डायरेक्टली वहीं की चीजें बता रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द इंडस्ट्री. सो आपको उस चीज के लिए, मतलब यूपीएस इज वेरी गुड. इट brings a lot of people from the industry to the college. So basically ACADS, internships, projects, apart from that extra curricular जो भी activities होती हैं हमारी, guest lectures या जो भी हमारी In fact, societies sports, if you are into sports, UPS is good for that. sports. We are going to have Spandan, which is Right, coming very right, soon. right. So in the sports, also they have a lot of events going on. If I'm not wrong, cricket, Football is there, right? chess. So, and there are teams, there's competition. So you get to learn a team sport also. We have inter-school competitions going on, right? हाँ, Yes. so like UPS is good in, मतलब अगर ACADS के बाद अगलावा भी मैं कहीं बात करूँ ना, तो they are too good with the sports or in these activities. So basically according to you, अंशिका, कि हमें फॉलो करना है ACADS, हमारे रिज्यूमे पे काम करना है, हमारी लाइक इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करूँ तो हमारी ओवरऑल जो भी प्रोफाइल हो रही है एकेट्स, स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज़, सबको ध्यान में रखते हुए चलना है. इट्स जस्ट नॉट दैट कि यार इफ़ आई एम गुड विद एकेट्स तो मैं एकेट्स ही करूँगा, क्लास में बैठा रहूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब आपको सोसाइटीज़ जो भी कल्चर इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे भी पार्ट्स लेना चाहिए. Abhishek, if I'm not wrong, you had your induction as well, right? हाँ. So induction में तुम्हें एक बात बोली गई होगी कि MBA is just a 10 months course. It actually is. I think our dean My said that- MBA started in June 2024, Mhm. and it's almost 2025 is about to get over, and I'm still thinking, I'm still processing that how this time just like, went by. इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट. कैसे कंप्लीट हो गया. Like, ये 3 चीज़- सेमेस्टर होने वाले हैं और it just went by. मतलब आपको, इसीलिए मैं बोल रही हूँ गाइस, कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी चाहिए. Perfect. So it's a kind of roadmap according to you. So I have few questions. आपको उनको आंसर करना है in just a short way. According to you, why MBA और MBA क्यों ज़रूरी है? MBA actually whatever you learn in BBA, हम्म. वो एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है. जब आप MBA में आते हो तो आप बहुत स्पेसिफिक हो जाते हो कि आप क्या पढ़ रहे हो, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आप नेटवर्किंग समझते हो. BBA में you just BBA or any bachelor's I would say, you just focus on कि yes this is college life, okay I am इतने doing मार्क्स it. लाने हैं, हाँ. घर पे खुश करना है. बट ये चीज़ मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस BBA के लाइक मैंने जैसे BA जर्मन ऑनर्स करी तो मैं सोचता था कि पास आउट हो जाऊंगा, उसके बाद देखूंगा करना क्या है.
मतलब आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट कि भाई कंपनीज आ रही हैं, प्लेसमेंट ले लूँ, इस ग्रुप में पार्टिसिपेट कर लूँ, उसमें कर लूँ। एंड MBA आई एम थिंकिंग अभी से, लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, कि यार मेरे को इंटर्नशिप करनी है, मेरा And ये एक्सेल you are not सर्टिफिकेट। alone. हाँ, एवरीवन इज लाइक दैट कि एक माइंडसेट रहता है कि मेरे को इंडस्ट्री में ही जाना है। और बैचलर्स के बाद एक रहता है कि कुछ नहीं हुआ तो फिर MBA कर लेंगे ना, अगर जॉब नहीं लग रही, इंटर्नशिप नहीं बट लगी, तो अब फिर MBA के बाद क्या क्या करना है? करना है। एग्जैक्टली, सो दैट्स द पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू यू कि ये पॉइंट रहता है, ठीक है, perfect. So we are done with our ACADS and everything. There is one suggestion for the logistic students or the MBA student. Someone is planning to go with the MBA or UPS में उसको आना है, तो like what's a one line thought according to you? One line. हाँ. One line is very Like, short you can to be describe said. it in one or two lines. There's a lot to say. But yes, if you are planning for MBA in logistics and supply chain, or even other courses, but to be very specific, as I am from MBA logistics and supply chain, so you should go for UPS, or you should go with UPS, because first of the campus, secondly the alumni connection and network, and third, the way they teach you, the way they give you the industry exposure, that is very important. Not only theory, like they used to give us the practical life also, कि Practical आपको life इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो वहाँ पे फोकस रहता है। ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक बेसिकली अभी हमारे इंडिया में भी ये चल रहा है कि देयर आर फ्यू इंडस्ट्री बेस्ड MBA कॉलेजेस जहाँ पे वो 1 साल की MBA कराते हैं, राइट। तो लोग सोचते हैं कि 1 साल की MBA कर लेते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री बेस्ड कॉलेजेस हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज। अगर इफ़ यू आर प्लान टू गो विद द 2 years ऑफ MBA फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, तो वहाँ पे भी आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का भी वो मिलेगा। Talking about the industry, as we were continuously talking about industry, Hmm. if you have heard of industrial visit that Hmm. we have Mhm. in the MBA program, that is also very beneficial, because you get to the industries and you visit them and then see how the working is happening. So that is very beneficial. Helpful. Yes. All right, Rohanjika, like we are done with the whole podcast, and like once again, thank you so much for joining us. Thank you so much. Thank you. Thank you for inviting me.